Then it is about the most interesting molecule, as rightly written in your NCRT, the most interesting molecule in the whole living system. And it's not only about it is the genetic material we know about it and only that, but how in this whole means the evolution of the living system, how there is the formation of this structure. What is the significance of the structure or the molecule, and how it is the structure or the molecule which can give rise to that we are saying in the present term, which is as the genetic material. And but before that, we first let us discuss about the structure of this DNA and about this DNA. So basically, it is nothing but a long polymer of deoxyribo deoxyribonucleotides. Okay, one by one, we are going to discuss what is this, what is the name, what is the means meaning behind this term, which is deoxyribonucleotide. And before that, just let us discuss about how what is the basis of this structure. What is the means how this DNA can be defined in different organisms. It is defined basically by the length, and its length is defined in the term of the number of nucleotides. Number of nucleotides. No need to worry. Just we are going to discuss after a few seconds or minutes. What is this nucleotide? Okay, number of nucleotides, or basically it is nothing but the pair of nucleotide, which we know as the base pair, which is nothing but the base pair. And we will go means एक बार हल्के से ब्रीफली थोड़ा बात कर लेंगे। ये जब हम लोग बात करें रिलेटेड टू लेंथ, तो ये लेंथ के बारे में जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम सबसे एक छोटा टाइप का जो एक जिसको विरियन बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इज अ bacteriophage. And what is the name of this bacteriophage? The name of this bacteriophage is 5 times 174. No need to worry, just I'm going to write it down. 5 times 174 bacteriophage. Excuse me. Yeah. So it is 5 times 174 bacteriophage. Then, yeah. So basically, the number of nucleotides or the DNA which it contains has the number of nucleotides as 5,386, which is 5,386. Secondly, just in a brief, we are going to discuss about the next uh, organism and what is the length or what is the number of nucleotides or the number of base pairs it contains. That is a very interesting organism, not an organism actually, structure which is known as lambda phase or bacteriophage lambda, and it has 48,502 base pairs. Okay. Similarly, then we are going to discuss about one such prokaryote or prokaryotic organism, a bacteria, which is highly extensively has been means the research has been went on with this, and it is nothing but E. coli, and the number of base pair it contains is 4.6 into 10 to the 6 number of base pairs. So you can think about how number different means organisms contain different length of DNA, and without means let just break the ice and discuss about the what is the number of nucleotide or the number of base pairs found in a human being, and for haploid content of human. So for haploid
content in human, you know, human contains a 23 pairs of chromosomes. Okay, we are not going to discuss about what is a chromosome and all. Rather, we are sticking to the DNA, and it is 3.3 into 10 to the 9 number of base pairs, or the nucleotides numbers which have been paired in a DNA. And when we are going to discuss about all this, so first we need to discuss about what do we mean by this deoxyribonucleotides and how this is different with ribonucleotides, or we can say about DNA. So first let us discuss about the structure of DNA. And while we are going to discuss about the structure of DNA, we need to be more careful about the different terms. ओके, तो जो न्यूक्लियोटाइड सॉरी जो डीएनए में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और बेसिकली हम लोग जब बात कर रहे हैं दैट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये कौन सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है? अगर हम बस डीएनए के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना। और सिंपली हम लोग जो इसको बात करते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। और इस जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बात कर रहे हैं तो हमें पहले न्यूक्लियोटाइड क्या है बात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। और इस जब न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं तो पहली बात है हमें न्यूक्लियोटाइड क्या है पता होना चाहिए। वी शुड डिस्कस व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। और जब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करने जा रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से बना हुआ है ना। मैं बार बार यही चीज बोल दोहराऊंगा, न्यूक्लियोटाइड में कौन से जो अलग अलग चीजें हैं उनको हमें पहले एक एक करके जानना होगा। और सबसे पहला द फर्स्ट थिंग विच अ न्यूक्लियोटाइड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अ नाइट्रोजेनस बेस। The first thing is a nitrogenous base. One by one we are going to discuss. No need to hurry. Second thing, the second with which this DNA or the basic structure of DNA or the polynucleotide has been made is a pentose sugar। नाम से समझ में आ रहा होगा इस सुगर मॉलिक्यूल जिसमें 5 कार्बन के सुगर मॉलिक्यूल हैं। और तीसरा हो जाएगा जो कि है दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट्स है न्यूक्लियोटाइड की। कंपोनेंट्स हैं, द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या क्या है? वन इज अ नाइट्रोजनस बेस, सेकंड इज अ पेंटोस सुगर, एंड जो तीसरा है वो है फॉस्फेट ग्रुप। और जब ये पेंटोस शुगर के बारे में बात करें, पेंटोस शुगर भी दो तरह के हो सकते हैं। अब हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो डीएनए के लिए ये तो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं फॉर डीएनए। और सिंपली जो आरएनए में जो जिसका आरएनए जो कि एक एब्रिविएशन है किसका, एक जो मॉलिक्यूलर नेम का वो है राइबोन्यूक्लियो राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे आ जाएगा राइबोस शुगर। और ये किसके लिए है, फॉर आरएनए। और इसको मैं एस्टेरिस्क मार्क दे रहा हूँ ताकि ये हम आगे के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो है एक एक करके एक्सटेंसिवली हम बात करेंगे अबाउट दिस थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स। और ये तीनों कंपोनेंट्स को जानने से ही हम लोग अच्छे से डीएनए का स्ट्रक्चर जान सकते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर जानेंगे तो डीएनए का जो आगे जो इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीएनए में जो कैसे सिग्नल और सॉरी कैसे इंफॉर्मेशन पास होता है थ्रू द सेंट्रल डोग्मा, वो हम बात कर सकते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहला द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजेनस बेस। और जब नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये नाइट्रोजनस बेस क्या है वो जानना होगा। और जब नाइट्रोजनस बेस तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड।
हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही जाएगा। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जानेंगे दो तरह के नाइट्रोजनस बेस। एंड इसमें जो दो तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं, पहला हो जाएगा, पहला एक ग्रुप हो जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन। और दूसरा जो होता है वो होता है pyrimidine। तो नाइट्रोजनस बेस के मैं दो ग्रुप के बारे में बात करने जाऊंगा। जो एक है दैट इज प्यूरिन, और एक है pyrimidine। अब यहाँ पे जब मैं आपको बोला कि ये जो होता है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और ये जो हेटेरोसाइक्लिक क्यों है, बिकॉज इट इज हैविंग बोथ नाइट्रोजन एंड कार्बन इन देम, एंड इट इज a fused ring structure। फिर प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन होता है एक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर, और ये होता है इंडिविजुअल रिंग स्ट्रक्चर। जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल रिंग। अब इसके बारे में जानेंगे। अब ये जो है, अब आ जाता है कि मीन्स जो ये हम बात कर रहे हैं अबाउट प्यूरिन पिरिमिडिन, ये होता क्या है? ये होता है नथिंग बट, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो एंड अलोंग विथ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक बेस है ना। और यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दिस नाइट्रोजनस बेस। तो कहीं ना कहीं हम अभी ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें नंबरिंग होगा ऑब्वियसली। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी, 6 7 8 9, ठीक है। इसी तरीके का यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगा। और यहाँ पे जो वही ऐसे तरीके से 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर यही बात है, हम आगे भी देख सकते हैं 1 2, जहां से नाइट्रोजन स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम लोग नंबरिंग करते हैं। और 6, यहाँ भी वही बात है, 1 2 3 4 5 6, देन इट इज 7 8 9। ओके, इसी तरीके से सारी जगह पे नंबरिंग है। एंड यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये नंबरिंग, अभी हमें फिर ध्यान है कि हम ये सब जानने के लिए क्यों क्यों ही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने के पीछे का एक ही बस नॉर्मल सा रीजन है कि हम तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में जान रहे हैं। और ये नाइट्रोजनस बेस के बारे में जब जान रहे हैं तो ये कैसे करके एक डीएनए का स्ट्रक्चर बन सकता है, कैसे एक कंपोनेंट दूसरे के साथ जुड़ सकता है। अब ये जानने के लिए हमें फिर थोड़ा सा प्यूरिन पिरिमिडिन के बारे में जानना होगा। ये जो पहला स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनाइन, दूसरा स्ट्रक्चर उसको हम लोग बोलते हैं गुआनिन। नाइट्रोजनस बेस के नाम जब बोलेंगे तो बोलेंगे एडिनाइन, गुआनिन। सिमिलरली यहाँ पे पिरिमिडिन का नाम हो जाएगा साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। यूरेसिल पर ये किसके लिए है? ये आरएनए के लिए। और ये जो अगर कोई ध्यान से देखेगा थायमिन और, ये जो थायमिन और यूरेसिल में क्या अंतर है, बस 5 नंबर कार्बन में, 5 नंबर में आप ध्यान दो कि एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है थायमिन में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। बस सेम चीज हो गई यहाँ पे, है ना, कि जो सेम कंपाउंड, सॉरी सिमिलर कंपाउंड ओनली हैविंग वन ग्रुप ऑफ मिथाइल इन प्रेजेंट इन 5 कार्बन। इतना होने के बाद अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, जो कि है पेंटोस शुगर। अब बात आएगी अगर पेंटोस शुगर के बारे में, तो पेंटोस शुगर है क्या? कुछ नहीं, एक राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर फिर होता क्या है? राइबोस शुगर को बस एक बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे, जो कि है यहाँ पे लाइक दिस। ये जो राइबोस शुगर है और डिऑक्सी राइबोस शुगर है, तो अलग अलग नाम क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि
सिंपली अगर देखेंगे राइबोज में, एक राइबोस मॉलिक्यूल में जो शुगर मॉलिक्यूल है 5 कार्बन का, यहाँ पे हम थोड़ा सा नंबरिंग देते हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड यहाँ पे 5 प्राइम। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। बस ध्यान देंगे ये जो रेड कलर का मार्क है, रेड कलर का हाईलाइट हुआ है 2 प्राइम जगह पे, अगर 2 प्राइम OH ना हो, मतलब सॉरी ऑक्सीजन ग्रुप ना हो, उसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2 डी ऑक्सी। 2 डी ऑक्सी क्यों? डी ऑक्सी नॉट ऑक्सीजन, और इसमें नॉर्मल राइबोस। तो इन दोनों में क्या अंतर है? वो अंतर है वो है कि एक में है जो ऑक्सीजन ग्रुप इन द 2 प्राइम पोजीशन, और दूसरे में नहीं है। उसीलिए एक का नाम हो जाता है यहाँ पे which is राइबोस, अनदर जो होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस। फिर ये मैं राइबोस को एस्टेरिस्क कर देता हूँ ताकि हम आरएनए के टाइम पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्यों? क्योंकि यही फॉस्फेट ग्रुप की वजह से एक जो मीन्स मॉलिक्यूल सॉरी एक न्यूक्लियोटाइड ग्रुप है, वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड ग्रुप के साथ जुड़ सकता है बाय मेकिंग, जो वी कैन से बाय मेकिंग बॉन्ड। एंड ये जानने से पहले हम थोड़ा सा बस एक हल्के से इस फॉस्फेट ग्रुप के बारे में जानना चाहेंगे। फॉस्फेट ग्रुप कुछ नहीं है, जब फॉस्फोरिक एसिड, हाँ फॉस्फोरिक एसिड में से अगर हम सारे हाइड्रोजन को निकाल दें तो जो ग्रुप बचेगा इसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला PO4 है ना। तो यही हो जाता है तीनों कंपोनेंट्स। अब ये तीनों कंपोनेंट्स का मीन्स फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, अब एक बहुत एक हायरार्की देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले ये जो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस अगर एक पेंटोस शुगर के साथ लिंक होगा, पेंटोस शुगर के साथ लिंक होगा, पेंटोस शुगर एक ही है, पर ध्यान दो नाइट्रोजनस बेस क्या है, नाइट्रोजनस बेस अलग प्रकार के हैं जो कि डीएनए के लिए है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, हर एक नाइट्रोजनस बेस के लिए एक एक कोडिंग है। एक एडेनाइन का नाम, एडेनाइन का कोड है ए, गुआनिन का कोड है जी, साइटोसिन का कोड है सी, थाइमिन का कोड है टी एंड यूरेसिल का कोड है यू। तो ऐसे हम लोग जब बात करते हैं तो ATC, ठीक है, ये क्यों हम बात करते हैं, कैसे किस लिए बात करते हैं, हम आगे के डिस्कशन में जानेंगे। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर का जो मीन्स लिंक रहेगा, इस लिंक से जो फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब फिर सवाल ये आएगा कि अभी तक हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में इसीलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है नाइट्रोजन स्पेस और पेंटोस शुगर के बीच में, जो फॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको जानने के बाद ही हम जान सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। अब एक बहुत सिंपल तरीके से मैं नाइट्रोजनस जो बेस और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंक है उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, और जो कि है ये। ओके, तो पहले मैं ये न्यूक्लियोसाइड को बस ध्यान देने के लिए बोलूंगा, और यहाँ पे मैं चाहूंगा देखने के लिए कि एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो लिंकेज होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब फिर सवाल ये आएगी बात, फिर ये आएगी कि हम इसमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम इसमें इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे कोई अच्छे से ध्यान देगा, मानो कोई एक मीन्स जो अ, एक ग्रुप है, नाइट्रोजनस ग्रुप है जो कि है प्यूरिन। हाँ पता है क्योंकि फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये प्यूरिन है। प्यूरिन के केस में जो एनाइन होता है,
N9, ये 9 नंबर का जो ग्रुप है वो कार्बन का C1 प्राइम के साथ और C1 के साथ लिंक होगा। अब इसको अगर हम बात करेंगे तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो लिंकेज, इसको एक्चुअली में बोलते हैं एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में हम देखेंगे कि जो क्या हो रहा है, N9 बेस और किसके साथ, C1 शुगर, जो कि C1 शुगर क्यों, क्योंकि राइबोस शुगर या डिऑक्सी राइबोस शुगर के साथ। सिमिलरली अगर कोई पिरिमिडिन, ये प्यूरिन के लिए है, सिमिलरली कोई पिरिमिडिन के लिए हम लोग देखेंगे। पिरिमिडिन क्या है, सिंगल इंडिविजुअल रिंग स्ट्रक्चर, उसमें N1 बेस के साथ किसका लिंक हो रहा है, C1 शुगर का लिंक हो रहा है। यहाँ पे हम बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई देख सकता है कि अगर कोई प्यूरिन का जो N9 है वो C1 के साथ लिंक होगा तो ये कहलाएगा N9 C1 N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सिमिलरली मैं अभी ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा इग्नोर करने के लिए बोलूंगा, पर अभी ध्यान देंगे। अगर कोई पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन में अगर कोई N1 N1 अगर कोई C1 के साथ जो बॉन्डेज करे या कोई लिंक करे तो उनको हम लोग बोले N1C1 N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसी तरीके से हम तो बात कर रहे हैं रिलेटेड टू शुगर। अब शुगर कौन कौन सा शुगर है, शुगर दो तरह के शुगर है, एक है राइबोस शुगर और एक है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो न्यूक्लियोसाइड के नाम क्या होंगे, अगर कोई जैसा माना जाए कि एडिनोसाइन, एडिनोसाइन अगर कोई न्यूक्लियोसाइड बना, है ना, ये बेस का नाम है, अभी न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा। न्यूक्लियोसाइड का नाम, हम अभी यहाँ पे डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं डीएनए के हिसाब से बोलूँ बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे हो जाएगा जो कि, सॉरी, एक, हाँ यहाँ पे एक चीज रह गया था, हाँ नाइट्रोजनस बेस के नाम अगर हम लोग देखेंगे जो कि है एडेनाइन, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम आ जाएगा जो कि है डीऑक्सी एडिनोसाइन। अब बहुत सिंपल है, अगर हम लोग इसको आरएनए के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा एडिनोसाइन। सिमिलरली इस बेस अगर कोई हम लोग देखेंगे जो कि है हमारा प्यूरिन, अगर दो देखें, जैसे प्यूरिन में हमें पता है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, अगर प्यूरिन में हमें पता है ग्वानाइन है, जैसे एडेनाइन का हुआ एडिनोसाइन, सॉरी डीऑक्सी एडिनोसाइन, ग्वानाइन का हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसाइन। तो लिख सकते हैं ग्वानिन इज डीऑक्सी ग्वानोसाइन। सिमिलरली साइटोसिन, अब यहाँ पे ध्यान मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ये हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडिन। अब थाइमिन हो जाएगा तो हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिन। तो ये अभी अगर कोई कोई प्यूरिन हो, कोई pyrimidine हो, ये पहले दो तो प्यूरिन है, ये दूसरा दो तो pyrimidine है। तो ये जो पहले प्यूरिन और pyrimidine का, सॉरी प्यूरिन और कोई शुगर का लिंकेज होगा विथ एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो उनका नाम हम इस तरीके से देंगे जो कि है डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे pyrimidine का, pyrimidine के केस में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, एक है डीऑक्सी साइटो, सॉरी साइटिडिन, और जब हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू थाइमिन तो वो हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिन। तो ये हो गया हमारा अभी न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अब ये न्यूक्लियोसाइड का हम जो ये अभी हायरार्की के बारे में बात करें, हायरार्की मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये हायरार्की अगर बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर प्लस, न्यूक्लियोसाइड प्लस अगर कोई फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक होगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो वो कहलाता है अभी हमारा जो कैरेक्टर आ रहा हुआ है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड होगा क्या, न्यूक्लियोटाइड वेरी सिंपल, हम जब अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, दोबारा से मैं ये वाली जो पिक्चर है उसको दिखाऊंगा जो कि है यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे एक pyrimidine का, हमें पता है pyrimidine का जब हम लोग न्यूक्लियोसाइड फॉर्म फॉर्म कर रहे हैं तो उसका N1 और C1 का लिंकेज है, N1 C1 का N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अब यहाँ पे जो 5 प्राइम ग्रुप हमारे शुगर का 5 प्राइम ग्रुप के साथ अगर कोई फॉस्फेट जो 5 प्राइम OH के साथ, जो 5 प्राइम हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अगर कोई फॉस्फेट ग्रुप लिंक करे, उसको हम लोग अभी नाम दे देंगे एज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड और फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम पहले देखें, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में फॉर्म होता है एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो एक बॉन्ड हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड में मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप हुआ तो उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट बोल रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, अगर दो हुआ तो ऑब्वियसली बोलेंगे डाइफॉस्फेट, और तीन होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। अब इसी से हम लोग को जो स्ट्रक्चर बन फॉर्म हो रहा है वो हो जाता है हमारा सबसे चाहिदा, अभी जो हम लोग जिसके बारे में बात करें वो है न्यूक्लियोटाइड। अब तो ये तो हो गया हमारा सबसे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो आ गया वो है हो गया पॉलीमर जो उसका सिंगल मॉलिक्यूल जो कि एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जब फिर से फर्दर लिंक करेंगे और ये फर्दर लिंक करके जो स्ट्रक्चर फर्दर देंगे तो ये कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मैं पहले एक डाइन्यूक्लियोटाइड दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद एक ओवरऑल आइडिया हमें मिल जाएगी कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर में इन लोगों का काम क्या है। अब ये डाइन्यूक्लियोटाइड दिखाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि है ये। अब ये कोड के हिसाब से देखेंगे, बेस का कोड के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाता है एडिनोसाइन, जो कि मैं विच इज नथिंग बट एडेनिन जो है, तो ये हो जाएगा जी, जो कि गुआनोसाइन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन। अब ये डीऑक्सी एडिनोसाइन और गुआनोसाइन के बीच में जो दो न्यूक्लियोटाइड है, उन दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड होगा उसको हम लोग अभी यहाँ पे जानेंगे एज, ये देखिए 1 प्राइम ग्रुप, 2 प्राइम ग्रुप, 3 प्राइम ग्रुप। सिमिलरली 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम। तो ये अच्छे से ध्यान देंगे, जो कि रह जाएगा दिस वन एज 3 प्राइम और 5 प्राइम बॉन्ड, और जिसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। जैसे हम लोग फॉस्फेट ग्रुप का एक फॉस्फेट ग्रुप जब 5 प्राइम हाइड्रोक्साइल ग्रुप 5 प्राइम OH ग्रुप था, एक न्यूक्लियोसाइड के साथ लिंक होता है, तो हम उसको फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अब जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कैसा लिंक हो रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो लिंकेज हो रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंक। आई होप इतना तक ध्यान में आ रहा होगा। अब इसका आगे देखेंगे, अब इसमें आगे देखेंगे तो हमें फर्दर से फर्दर मिलता जाएगा, जो कि हो जाएगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हायरार्की इसके हिसाब से हम बात आराम से बोल सकते हैं कि पहले हम लोग बात किए कंपोनेंट, कंपोनेंट्स हमें मिलता है एक एक न्यूक्लियोसाइड। एक एक न्यूक्लियोसाइड कौन है, जो कि नाइट्रोजनस ग्रुप प्लस राइबोस पेंटोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए के लिए, राइबोस शुगर आरएनए के लिए। अब उसी का अगर कोई फॉस्फोएस्टर लिंकेज फॉर्म होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉरी न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड लिंक करते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। और डाइन्यूक्लियोटाइड से अगर और भी ऐसे मॉलिक्यूल एक एक करके अलग मॉलिक्यूल लिंक होते जाएंगे, अब कौन से बॉन्ड के साथ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ,
तो उसको हम लोग बोलेंगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम अभी डीएनए के बारे में बात करें तो हम बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन, एडेनिन जो कि नाइट्रोजनस बेस है। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो सारे सेंटर में एक मिडिल में पॉइंटेड होते हैं, है ना। और ये सुगर और फॉस्फर का, सॉरी फॉस्फेट का जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक सुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन। धीरे धीरे करके हमें डीएनए का स्ट्रक्चर, क्या उसका स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम धीरे धीरे करके जानेंगे। और यहाँ पे जो बैकबोन बना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वो हो जाता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब यहाँ शुगर फॉस्फेट बैकबोन में दो एंड आएंगे। एक आएगा 5' एंड। क्यों 5' एंड? क्योंकि जो मीन्स एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 3' दूसरे 5' के साथ लिंकेज हुआ, तो फ्री कौन सा रहा? 5' एंड। ठीक है। तो ये जो 5' एंड है ना, मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ ताकि ये चीज ध्यान रहेगा। ये 5' एंड है। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो रिमेनिंग बचा ये हो जाएगा 3' OH। तो यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमें दो एंड प्राप्त होते हैं, दो एंड मिलते हैं। वन इज 5' एंड, अनदर वन इज 3' एंड। 5' एंड में हमें क्या मिलेगा? 5' एंड कंसिस्ट ऑफ, इट इज अ फ्री फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट मोइटी। और इसी के साथ हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे, और ये कौन सा एंड में आ रहा है? फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5' एंड द शुगर। और कौन सा शुगर है ये? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और यहाँ पे जो दूसरा एंड हो जाएगा, ये है 5' एंड। और 3' एंड में हमें जो दूसरा मिलेगा वो हो जाएगा, दैट इज अ फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 3' OH ग्रुप। तो इसी के साथ हम लोगों को मिलता है जो कि है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी धीरे करके मैं थोड़ा डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा, जो कि एक नॉर्मल सा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और अभी यहाँ पे जो बैकबोन है, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि मैं जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, वो क्या है? एक नाइट्रोजनस शुगर जो, सॉरी नाइट्रोजनस बेस क्या है, और नाइट्रोजनस बेस का काम जो सेंटर की तरफ क्या है, ये जानने के लिए हम एक एक कर अभी यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बस एक 2 डायमेंशनल के हिसाब से मैं बताऊंगा। जैसे मैं बोला यहाँ पे 5' फॉस्फेट और 5' एंड, 3' हाइड्रोक्सिल या 3' एंड। पर डीएनए जो कि है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रिवर्स पोलरिटी के साथ दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक बॉन्ड होता है। और ये जो दो न्यूक्लियोटाइड चेन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो अच्छे से ध्यान देंगे। एक नाइट्रोजनस बेस है एडेनाइन, दूसरा थाइमिन के साथ डबल और दो हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्डिंग करेगा। सिमिलरली एक जो ग्वानिन है, दूसरा साइटोसिन के साथ कितने, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। और इसी के साथ जो इनका पेयरिंग हो रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बेस पेयरिंग। धीरे धीरे करके एक एक करके यही चीजें होती रहती हैं, यही चीज हमारी क्लियर होनी है। अब इसी के साथ मैं बस थोड़ा सा इसका और आरएनए के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस रहेगा। उसके बाद आगे के लेसन में, आगे के जो डिस्कशन में अलग अलग चीजें और डिस्कस होती जाएंगी। तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए का यहाँ पे कॉमन सा डायग्राम रह जाएगा।
जो कि एक नॉर्मल सा मैं बताऊंगा डीएनए वर्सेस आरएनए में। डीएनए में है द टू स्ट्रैंडेड polynucleotide chain bonding, and RNA is nothing but a single strand structure without any pairing. And in this, only one thing we need to know: in the place of thymine, which is 5-methyl uracil, we have 3-methyl. Sorry, we have normal uracil, and the remaining thing all are same. One another thing is different: the bone, the backbone. In this, the sugar phosphate backbone is nothing but deoxyribo sugar phosphate backbone, where the nitrogenous base are projected towards the middle. But in this case, there is no requirement of the projecting towards the middle because there is no bonding occurring in this structure. Rather, it is a having a backbone of ribo sugar phosphate backbone, having the all nitrogenous base as adenine guanine the purine and uracil cytosine as the pyrimidine. And in the place of DNA, it is adenine guanine as the purine, and for the case of which is pyrimidine, that is thymine and cytosine. With this, I will say we will stop here, and then in the next lecture, we are going to know about the structural formation of the DNA, how this DNA has been described. As you can look at here, it is the structure of the DNA which is formed as a DNA double helix. Okay, thank you.